Ladies and gentlemen, good day and welcome to Q1 FY24 earnings call of Servotech Power Systems Limited. As a reminder, all lines in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. If you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is recorded. I would now like to hand the conference over to Mr. Raman Bhatia, the Managing Director and Founder of Servotech. Thank you, and over to you, sir. Thank you. Good evening, all of you. Welcome to Servotech Power Systems Limited, our first earnings conference call. I am glad to have the opportunity to address all of you today and share some exciting updates about our company and the remarkable growth prospects that lie ahead. Servotech Power Systems Limited is a leading provider of smart power solutions in India. We offer a wide range of products and services, including EV chargers, solar products, and power and solutions. We are committed to providing our customers with innovative and reliable products that help them save energy and money. We have a strong track record of growth, and we are well positioned to capitalize on the growing demand for EV chargers and solar products. At Servotech, we believe that sustainable and green energy holds the key to unlocking progress, prosperity, and a better tomorrow, which is underlying our motto of produce green and live green. With a steadfast commitment to innovation and environmental stewardship, we have positioned ourselves as the forefront of the sustainable, clean, and green energy revolution. Our vision extends beyond mere profit making. We strive to create a positive impact on our planet, society, and bottom line of our investors. We have a strong product portfolio, a growing customer base, and a committed team. We are not only driving the transition towards a low carbon economy, but we are also providing cutting edge solutions for energy storage, grid optimization, and electric mobility. Our dedication to innovation and customer centricity has allowed us to forge strong partnerships and capture significant market share across various sectors. We command a sizable market share in the EV charging space and successfully provide more than 3,000 EV chargers across the nation. As we set forth on an accelerating path towards limitless expansion, we are experiencing an extraordinary shift in the realm of sustainable and environmentally friendly energy. The rise of electric vehicles, EVs, and the increasing demand of co-conscious power solutions have brought upon us unparalleled opportunities within our industry. Positioned at the vanguard of this revolution, our journey towards success was to reach unprecedented heights in the forthcoming quarter and beyond. In conclusion, the future of Servotech is promising. With the convergence of groundbreaking technologies, our commitment to innovation, strategic partnerships, and a steady path on sustainability, we are well positioned to see the abundant growth opportunities that lie ahead. We are confident that we continue to grow our business and deliver value to our stakeholders. Thank you, everyone. I will now transfer the call to Mr. Vipin Kochhar, our Finance Controller, who will provide an overview of our financial performance for the first quarter of fiscal year 2024. Over to Mr. Vipin. Thank you, sir. Good evening, everyone. Thank you for joining us today. Servotech delivered strong growth this quarter as we executed on our strategy to strengthen our presence across India. So we will move to the financial state of Q1. Our total consolidated revenue increased by 148.9% to 79.81 crores in Q1 FY24 from 32.07 crores in Q1 FY23. This impressive increase can be attributable to the strong demand for our EV products driven by the widespread adoption of electric vehicles
and the government's continued emphasis on establishing a robust charging infrastructure network. Additionally, our solar product range continue to exhibit healthy demand due to its functional design, durability, and user-friendly features. Our EBITDA increased by 415.3% from 1.4 crores in Q1 FY23 to 7.1 crores in Q1 FY24. Margins improved from 4.3% in Q1 FY23 to 8.9% in Q1 FY24 on account of increasing scale of operations and higher value-added products. PAT at 4.1 crores in Q1 FY24 compared to 36 lakhs in Q1 FY23. Margins improved from 1.1 in Q1 FY23 to 5.1 in Q1 FY24. This is a snapshot of the Q1 results vis-a-vis comparison. Thank you for your time, and we are happy to answer any questions you may have. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star, then 1 on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you press star, then 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Take the first question from the line of Amit Trapani, an individual investor. Please go ahead. Amit Trapani, your line is unmuted. You may please go ahead with your question. As there's no response from the current participant, proceed to the next question. Before that, I'd like to remind all participants again, if you have a question, please press star, then 1 on your touchtone telephone. Mr. Ravani, your line is unmuted. You may please go ahead with your question. Mr. Amit Ravani, an individual investor, your line is unmuted. You may please go ahead. Hey, bonus, sir. As there seems no response, proceed to the next question from the line of Ashok Agarwal. Please go ahead. The excellent set of numbers. My question is that in your presentation, you have made a 100% growth in the turnover in the financial years. So in that context, I want to know what is the you have? Yes. आपका सवाल पूरा हो गया? यही आपका सवाल है? हाँ, यही मेरा सवाल है जी। हाँ सर, हम आपको बताना चाहते हैं कंपनी 4 या 5 वर्टिकल में काम करती है। पहले आपको ये बताऊंगा कंपनी का मॉडल। पहला जो है वो है हम लोग टेंडरिंग बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हमारा जो बिजनेस है वो है चैनल सेल्स, तीसरा है ओईएम, और चौथा है जो हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स करते हैं या हम डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स के थ्रू भी करते हैं, राइट। तो डिजिटल ई कॉमर्स और जो हमारा चैनल सेल्स है उससे फिक्स बिजनेस है जो रूटीन लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए महीने का बिजनेस है। तो अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो लगभग 60 से 70 करोड़ का ऑर्डर बुक वो ऑलरेडी पाइपलाइन है, दैट इज नंबर 1। इसके अलावा जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो अगले क्वार्टर के लिए 90 करोड़ के ऑर्डर इन पाइपलाइन है जो हमें एग्जीक्यूट करने हैं। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट किए हुए हैं। तो इन टोटल आप देख सकते हैं उसमें हमारा रेशो अगर हम बात करते हैं 20% भी बात करते हैं तो इट इज अराउंड 500 to 600 करोड़ सकता है। तो 1000 करोड़ के जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं ये प्रोजेक्ट्स हैं, आपने सप्लाई ऑफ ईवी चार्जर्स या और सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन हमें क्रिएट करके देना होता है। हम सीपीओ ऑपरेटर नहीं है, यानी कि हमारा इंस्टॉल करके
उससे रेवेन्यू कमाने का कोई इरादा नहीं है। हम कैपेक्स बेस्ड मॉडल में काम करते हैं, यानी कि ऐसा मैन्युफैक्चर हम मटेरियल कर देंगे, उसको इंस्टॉल करके देंगे, कमीशनिंग करके देंगे, उसकी मेंटेनेंस कर देंगे, बट हम पैसा ट्रांसफर ले लेंगे। दैट इज बिजनेस मॉडल। Okay, so largely this is EV chargers means 1000 crore. सोलर प्रोजेक्ट नहीं है, सोलर रूफ के प्रोजेक्ट हैं जो हम कर रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ न्यूज देखेंगे तो यूपी नेटा के कुछ प्रोजेक्ट हैं हमारे पास उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, एंड प्लस और ऑर्डर हैं जिसकी न्यूज हम अभी और पब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें हम सोलर बेस्ड हिंदुस्तान का पहला चार्जर, ईवी चार्जर स्टेशन बनाने जा रहे हैं साउथ दिल्ली में। वो भी बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। ये न्यूज अभी पहले भी हमने पब्लिश की है, वो होने वाला है। ओके, तो ये क्या रेशियो है जैसे 1000 करोड़ में सोलर सिस्टम्स का क्या रेशियो होगा? और टेंडर की अगर आप बात करते हैं, टेंडर बिड की बात कर रहे हैं ना, टेंडर के अंदर जो बात करें तो मेजर पार्ट जो है वो ईवी चार्जर का है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं हमारे बिजनेस का तो हमें मिलेगा, और जो हम अपनी एक फोरकास्टिंग है वो मोटा मोटी 60% के आसपास ईवी चार्जर रहेगा और अराउंड 33% के आसपास सोलर रहेगा। अच्छा, तो ये भी मतलब ये यूनिफॉर्मली एग्जीक्यूट होंगे Q4 में, या इसमें लंपिंग होता है, मतलब कोई भी तक जाते जाते ज्यादा इम्प्लीमेंट हो जाता है? मैं आपको जवाब देता हूँ कभी। आप अगर हमारी प्रेजेंटेशन को दोबारा देखेंगे, जो प्रेजेंटेशन रिलीज की है NXT गई, उसमें हमने फिगर किया है Q1 की नेट सेल है। उस पेज पे अगर आप प्रेजेंटेशन दोबारा जाएंगे तो हमने वहां पर मेंशन किया है कि हमारा जो Q1 होता है वो टोटल टर्नओवर का एज पर द लास्ट 5 ईयर्स का पैटर्न, करेक्ट? ओके। और जो सेकंड क्वार्टर होता है वो 16% के आसपास होता है ऑफ द टोटल टर्नओवर। थर्ड क्वार्टर जो होता है वो 30% होता है और क्वार्टर 40% के आसपास। That is what we observed last जो Q4 था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, was a very large sale book there actually. So I was wondering whether sale has really dropped in Q1 or ये 10 साल का यही है, लेकिन 10 साल की बात कैसे नहीं करता क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुए 5.5 साल हुए हैं, इसलिए हम 5 साल के बेस पे हमने डाटा बनाया है। वही डाटा हमने पब्लिश भी किया है। आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो ये हमने स्लाइड पे दिया है, हमारी स्लाइड नंबर 22 है ये। ओके, आई विल केयरफुली अगेन प्लीज। ओके सर, मैं फिर से आई विल जॉइन यू अगेन। जी प्लीज सर, थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Vivek Singh, an individual investor. Please go ahead. रमेश नमस्कार, विवेक बोल रहा हूँ। हेलो जी नमस्कार सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। ये अब जो चार्जिंग है या सोलर है, चार्जिंग में खासकर बहुत सारी फॉरेन कंपनीज आ रही हैं, जैसे ABB है या हिताची है या ये है, तो हमारा क्या कंपनी मतलब मैंने आपका वीडियो देखा है सर्वोटेक का, तो उसमें ये था कि आपने मेडिकल इक्विपमेंट के लिए IIT जम्मू से टाई अप किया था, तो ये हमारा कुछ टाई अप है किसी फॉरेन कंपनी के साथ में? एंड दूसरा जो कैपेसिटी है अभी, उसको हम कुछ एक्सपांशन कर रहे हैं, कैपेक्स पे कुछ खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं अपने, जो चार्जिंग डिवीजन है, सोलर डिवीजन है, लाइटिंग डिवीजन है, तो आपका सवाल भी समझ गया, उसका जवाब भी डिमांड है कि आई थिंक हमारी कंपनी उसका हार्डली 1 या 2% या 5% कर पाएगी, ऐसा। मैं आपको जवाब देता हूँ सर। हेलो जी सर, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से हमारी प्रेजेंटेशन को दोबारा देखेंगे तो आपको उसमें भी हालांकि जवाब मिलेगा, लेकिन मैं आपको पहले जवाब देता हूँ पहले सवाल का। आपने ये पूछा कि हमारा कोई फॉरेन पॉलिसी है क्या, राइट? जी, तो मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे या न्यूज़ को उठाएंगे तो गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के लिए भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के लिए भी, जिसको वो कहते हैं FAME, राइट? स्कीम जो होता है, हेलो जी ऐसा जो स्कीम है, आपको सर 1 सेकंड,
मैं आपकी, हाँ, फेम का जो है उसका फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें उनकी पहली शर्त ये है कि आपका प्रोडक्ट इंडिजिनाइज होना चाहिए, हिंदुस्तान में बनना चाहिए, टेक्नोलॉजी इंडियन होनी चाहिए। हेलो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने कंपनी, कुछ मुझे फॉरेन की कंपनियां बताई, वो इन बड़े प्रोजेक्ट से बाहर हो जाती है अगर वो इंपोर्ट कर रही हैं या वो अगर इसको बाहर से लेके आ रही हैं। तो आपको इंडिजिनाइज करना होगा, तो पहले आपके लिए कंपटीशन काफी मर जाता है, राइट। जी। दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो हमें, जो हमने मेडिकल कंसंट्रेटर में किया या हमने जो यूवीसी लाइट्स में किया, आईआईटी जम्मू वगैरह के साथ मिलके या डीआरडीओ के साथ मिलके, राइट, तो इन सब के साथ काम करने से हमने अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को इतना एनहेंस कर लिया कि आज हमारे पास इंटरनली इतनी स्ट्रांग टीम है कि हम लोग ये सब कुछ इंडिया में यूनाइट कर चुके हैं। यह पहली बात है, करेक्ट। अब अगर आप ध्यान से हमारी स्लाइड नंबर 20 देखें जो हमने पब्लिश की है, उस पर हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जब बात की है तो हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात, बैकवर्ड, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जितने पार्ट्स इस चार्जर को बनाने में लगते हैं वो सब भी हम इंडिजिनाइज कर रहे हैं, जिसके लिए हमने 2,00,000 के एरिया में प्रोडक्शन लाइन करने जा रहे हैं। हम 2 नई फैक्ट्री हमारी आने जा रही है। अगर आप लास्ट स्लाइड पे जाएंगे, स्लाइड नंबर 38 पे, तो हमने वहां पर नई यूनिट की पिक्चर भी दी है। आपने दी है जी। तो हम लोग इस पे काम कर रहे हैं बहुत तेजी से और हमारा टारगेट है कि अक्टूबर से पहले पहले वो नई फैक्ट्री जो है वो ऑपरेशनल हो जाए। ठीक है। दूसरा एक बहुत छोटा क्वेश्चन था कि क्या मतलब हमारी सेकेंड जनरेशन अभी बिजनेस में आ रही है कि क्या व्यू है, क्या आपका विचार है उस पर थोड़ा आप? इसके अंदर आपको मैं जवाब दे देता हूँ। जवाब थोड़ा सा अलग हो सकता है शायद दुनिया से, लेकिन मैं भी देना चाहूँगा। सर, अगर कोई फैमिली से आएगा तो वो मेरिट के बेस पे आ सकता है, उसको गद्दी नहीं मिलेगी कि मैंने इस बिजनेस को बनाया तो मिल जाए। कंपनी को अगले 3 साल में इस तरीके से हम लोग प्रोफेशनल्स के हाथ में ले जा रहे हैं, कंपनी में रमन भाटिया या फैमिली इररिलेवेंट हो जाएगी, हो या ना हो, ये अपनी एक स्पीड से ग्रो करते हैं। अगर मैं ये नहीं कर पाया तो ये कंपनी को, अगर मैं अपनी थॉट प्रोसेस या विजन से कहीं तक ले आया हूँ या मैनेजमेंट ले आई है, तो हमारे यहाँ से हटने के बाद हो सकता है कि उसका विजन और वो सब कुछ ड्रॉप कर जाए। तो हम अभी लीडरशिप टीम और प्रोफेशनल काम कर रहे हैं ताकि वो जो थॉट प्रोसेस है उसको हम एक प्रोसेस में डाल सकें, एक मैकेनिज्म में बना पाएं, ताकि हमारे होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कंपनी तेजी से ग्रो होती चले जाए और हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट कंपनीज में एक दिन आ पाए। अभी छोटी कंपनी ऐसी शुरू हुई हैं, लेकिन जितने भी ऐसा रखा है शायद वही बड़ी कंपनियां नहीं है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है सर, लेकिन आपका रहना एज ए चेयरमैन या जिस पोजीशन में रहें एज ए फाउंडर, तो वो आपका रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे प्रोफेशनल की कदर करता हूँ, चले जाते हैं। नहीं, आपकी भावना की कदर करता हूँ सर, लेकिन जब हम लीडरशिप की, असल लीडरशिप दो तरीके से, एक एम्प्लॉयमेंट से और एक ऑनरशिप से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आज हमारी कंपनी के मोर देन 70% लोगों को दिए गए हैं, सबको मालिकाना हक दिए जा रहे हैं, ताकि इस कंपनी में बहुत सारे मालिक पैदा हो पाए, अपनी कंपनी, इस कंपनी को आगे ले जाएं। ये कंपनी किसी एक व्यक्ति से नहीं चलेगी, इसकी सोच है कि मेरी वजह से चलेगी और ना ही मेरे जाने की वजह से बंद होगी। ये लगातार ग्रो करेगी, इसके लिए इस तरीके की सेकंड लाइन कमांड बनाई जा रही है और काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फैमिली से भी आएगा तो कोई भी, तो उसको भी तैयार किया जा रहा है ताकि वो भी मेरा थॉट था कि जिस हिसाब से आपने यहाँ तक लेके आया है इतने सारे डिफरेंट बिजनेसेस से, और आपने एक पूरी थिंकिंग बदल दी है कि कुछ इंडिया में बन सकता है, एक सोच होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। और जिस लेवल पे आज कंपनी है वो मतलब बहुत सारे लोग हैं इस बिजनेसेस में, इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर पाए हैं। मैं इतना इंश्योर करूंगा सर कि जो मैं सोच रहा हूं उस सोच को मैं स्प्रेड कर पाऊंगा
इस कंपनी के एक एम्प्लॉय में और एक व्यक्ति में एक बात और कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि जब प्रमोटर कोई बात कर रहा है तो बिकॉज ये रिकॉर्डेड है और ये एनएससी की जानी है, तो हमें बड़े शब्दों को चुन के बोलना चाहिए, लेकिन बावजूद एक शब्द मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। दो सोच है मेरे पास जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। पहली सोच ये है कि 2026 तक, यानी कि अगले 3 सालों में हम ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे कि सर्वोटेक कंपनी में एम्प्लॉय नौकरी ढूंढने के लिए सिफारिश लगाएगा, मुझे इस कंपनी में काम करना है। इसका मतलब कल्चर डेवलप करेंगे, वैल्यूज और कल्चर। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, ये अभी मैंने आईटी की एक कॉन्फ्रेंस में भी ये बात बोली थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को। हम एप्पल के लेवल की क्वालिटी को चाइना के एफओबी प्राइस पे मार्केट को देने की कोशिश कर रहे हैं और हम अगले सालों में ये मुकाम भी हासिल करेंगे और जरूर करेंगे। बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you. The next question is from the line of Shikhar Mundra from Vivo Commercial. Please go ahead. है सर, तो मैं समझा ईवी चार्जर का भी मार्केट कितना बड़ा है इंडिया में? सर, जो अभी मार्केट का साइज है, राइट, उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है सर, और एक मार्केट में डिमांड और सप्लाई की कहानी होती है। तो जितना बड़ा मार्केट है उसको कैटर करने के लिए जो हमारी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अभी मार्केट बड़ा है। लेकिन जो साइज इसका सोचा जा रहा है या जो साइज कैलकुलेशन की जा रही है, मैं अपनी स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर रहा हूँ, उस पर का निशान लगा रहा हूँ सबने, क्योंकि मैं उसके लिए प्रशिक्षित आदमी नहीं हूँ, फिर भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। वो मार्केट में और गूगल पे जो डेटा है अवेलेबल, छोटी मोटी कैलकुलेशन करके जो मार्केट देख पा रहा हूँ, वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट है अगले 6-7 सालों में। और हम लोग अगले 6 सालों में अगर 5 से 7 हजार करोड़ के टर्नओवर भी कर जाते हैं तो हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ भी ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसको हम ये कहें कि हमने कुछ बहुत बड़ा तीर मार लिया। इसके बावजूद एज अ सर्वोटेक की अगर हम बात करें तो वो आज से 30 गुना बड़ी जरूर हो जाएगी। अच्छा, नाइस नाइस। तो ये हमने प्रेजेंटेशन में लिखा 1200 करोड़ की, ये 6 लाख ईवी चार्जर्स के लिए, और अब 6 लाख ईवी चार्जर का 1200 करोड़ का पोटेंशियल होगा। 1200 करोड़ की अगर हम बात करें तो 6 लाख चार्जर नहीं होता सर। 1200 करोड़ में जो चार्जर आएंगे तो 100 करोड़ के अंदर लगभग जो चार्जर हैं, जो बात कर रहे हैं, वो लगभग बनते हैं 1000 चार्जर। तो अगर हम 1200 करोड़ की बात कर रहे हैं तो वो 12,000 चार्जर हो गए सर। अच्छा, ओके ओके। सो हमारा ये जो नया 6 लाख ईवी चार्जर्स जी, अंदर सारे चार्जर मिला के हैं, उसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। अगर उस तरीके से देखेंगे, आप दोनों की कैपेसिटी को टोटल करेंगे तो चार्जर क्वान्टिटी ज़्यादा आ जाएंगी। तब वो 12,000 नहीं रहेगी, तब वो क्वान्टिटी करीब 40-45 हज़ार 50 हज़ार तक चली जाएगी। मतलब हम 4 से 5 हज़ार टोटल बनाना चाहते हैं, जिसमें एसी चार्जर्स की हैं, जो आपको घर के लिए मिलती है। अच्छा, तो उनकी वैल्यू कम है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, तो दोनों को अगर हम तो फर्क आ जाता है थोड़ा सा। ओके। तो अभी एज ऑफ नाउ अपना जो 283 का सेल्स हुआ लास्ट ईयर, तो उसका क्या करते हैं? उसका भी ब्रेकअप हम लोगों ने, मुझे लगता है कि प्रेजेंटेशन में लास्ट में डाला था। अगर आप लास्ट प्रेजेंटेशन अगर एक बार देख लें तो उसमें हमने ब्रेकअप दिया है। अगर हम चार्जर की बात करें तो मेरे ख्याल से इसका 55% के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा हमारी प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। मेरी बात को प्लीज कोट ना किया जाए, क्योंकि मेरे सामने प्रेजेंटेशन नहीं है, बट मेरा मानना है कि डेटा हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। तो ओके, अभी जो ऑर्डर्स इन हैंड 2000, तो अभी ऑर्डर्स इन हैंड कितने हैं अपने? सर 80 करोड़ हम कर चुके हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले भी कोट किया है, उसके हम कर चुके हैं। 60 करोड़ का वो बिजनेस है जिसके लिए हमें अप्लाई करना होता है। उसके लिए एक पूरी एक चैनल डिविजन की टीम है, डिस्ट्रीब्यूटर है हमारे ऑल इंडिया। अभी हमारे 38 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 38। तो हमारा टारगेट है कि हम दिसंबर से पहले 200 क्लोज कर दें। डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे 10 से 15 रिटेलर होते हैं। ओके, इसका मतलब अगर हम बात करें करीब हमारे पास अभी 6 के आसपास रिटेलर्स हैं, और हम जो टारगेट कर रहे हैं वो हम टारगेट कर रहे हैं 3 से 4 हज़ार के बीच में रिटेलर्स आ जाएंगे, राइट।
तो Right. अभी इतने लोगों से हम 8 से 10 करोड़ महीने की कर रहे हैं, जिसका मतलब 60-70 करोड़ वो हो गया। 80 हम कर चुके हैं और करीब 90 करोड़ की ऑर्डर इन हैंड है। तो अगर इन तीनों को ही टोटल करते हैं तो हम लास्ट ईयर की टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा। और लगभग 2000 प्लस करोड़ के टेंडर्स हमने बिड किए हुए हैं, जिसमें हम अपनी एक्सपेक्टेशन 15 से 30 देख रहे हैं, यानी कि 500 से 600 करोड़। ओके। तो अभी इस साल वी आर रेवेन्यू ऑफ 110% ग्रोथ, मतलब लगभग डबल कर सकते हैं रेवेन्यू। तो जैसे लास्ट 283 करोड़ कर पाएंगे, इसमें बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, राइट। लेकिन हम कोशिश तो हमारी ऐसी है जो हम पिछले 3 साल कोशिश करते आ रहे हैं, तो कर रहे हैं। जी। तो अगर समझ लीजिए आपने 550 से 6 करोड़ का जब टारगेट है, उसमें आपका बिकअप क्या होगा सेल्स का? करीब 5% के आसपास जो होगा वो चार्जेस होंगे सर। चार्जेस होंगे और रेस्ट 16 होगा जी। एंड लिथियम बैटरीज? हाँ, वो भी सर ऐसा है ना, लिथियम बैटरी हम वी आर नॉट ए ट्रेडर कि मैं लिथियम बैटरी बना के बेचूंगा। बैटरी इज आल्सो सोलर। अच्छा, सोलर के पास। ओके। जो हम हैं तो वो होता है ऑफ ग्रिड सोलर, ऑन ग्रिड सोलर। ऑफ ग्रिड का मतलब उसमें होगा तो क्या होगा, तो वो सर्किट बन जाता है, तो उसका अलग से सेगमेंटेशन नहीं होता। सेगमेंटेशन तब होता है जब मैं अगर बैटरी बेच रहा हूँ तो मैं कहूँगा सिर्फ बैटरी बेच रहा हूँ, वो हमारा काम नहीं है। और हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है अपने प्रोजेक्ट्स में जो कंजम्पशन है उसके लिए, अभी हम रिटेल मार्केटिंग के लिए नहीं आ रहे। अच्छा। कि हम इस साल में क्वेश्चन कर लें कि हम अपनी ही कंजम्पशन पूरी कर लें, तो हमें लगता है कि हम 8% उसी में बना लेंगे प्रॉफिट। तो हम किसी और को दे रहे हैं बैटरी के लिए। ओके, गॉट इट। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। Thank you. The next question is from the line of Karthik Bhatt, an individual investor. Please go ahead. Mr. Bhatt, your line is unmuted. You may please go ahead with your question. As there's no response. Hello, yeah, am I audible? Yes, you are, sir. You may please go ahead now. Yeah. So आपने ये 2000 करोड़ टेंडर की बात की, तो इसमें व्हाट इज द क्राइटेरिया? इज इट ओनली प्राइस और इज इट आल्सो टेक्निकल नो हाउ एंड रिलेशनशिप एंड इज इट ओनली प्राइस और डिफरेंट? मैं सर आपका सवाल और आपकी आवाज समझ नहीं पाया, अगर आप रिपीट करते हैं तो मैं दोबारा आपने बताया कि 2000 करोड़ टेंडर का हम लोग बिड कर रहे हैं, तो इसमें प्राइस मैटर करता है या टेक्निकल नो हाउ और कितना एक्सपर्टीज है कंपनी का वो भी मैटर करता है, या किस बेसिस पे होगा? सर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे को मैं पब्लिकली स्ट्रेटेजिकली डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पर, ये मेरी लिमिटेशन है। बट विश्वास करें कि प्राइस काम नहीं, और अगर आप कहें प्राइस से तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा जो आपका कॉन्फिडेंस पाएगी कि जितने भी टेंडर आज इससे पहले पिछले 3 साल में भी हमने लिए हैं, राइट, उसमें अगर हम L1 रहे हैं तो L1 और L2 के बीच में प्राइस डिफरेंस वाज लेस देन 3 और 4%। इट मींस हमने प्राइस गिरा के ऑर्डर नहीं लिया। ओके, गॉट इट। और सर आई थिंक करेंटली हमारा कंट्रीब्यूशन 25% रहा है ओवरऑल चार्जेस में। तो व्हाट इज योर आउटलुक, मतलब आप क्या कौन से अदर लिस्टेड प्लेयर्स हैं और हमारा क्या कॉम्पिटिटिव एज है उनके मुकाबले, आइडिया क्या है कॉम्पिटिटिव? पहले मैं बता दूंगा सर, एक तो पहला है कि आप इंडिजिनाइज करना है आपको, जो मैंने बात आपने सुना हो पहले भी, एक और आपने ये सवाल पूछा इंडिजिनाइज करना है। मैं ये समझना चाहता था कि 25% कंट्रीब्यूशन हमारा है, बाकी 25% मैं बताता हूँ 25% जो हमारा है तो इसलिए है क्योंकि जितने भी प्लेयर्स मार्केट में आए हैं वो प्राइवेट काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्वांटिटी बहुत थोड़ी है, राइट। तो जो प्राइवेट हैं वो भी कहीं काम कर रहे हैं। किसी ने होटल्स में लगा दिया, किसी ने प्राइवेटली छोटे ऑर्डर्स लेके लगा दिया जम पे, या किसी ने किसी रेस्टोरेंट में लगा दिए, ढाबे में लगा दिए। तो अगर आप एक्यूमुलेटेड हैं तो जो क्वांटिटीज बनती हैं, हमने कुछ बड़े प्रोजेक्ट कर लिए 150-200 करोड़ पिछले साल में, तो हमारी क्वांटिटी उसको सरपास कर गई उनको, राइट। ओके। लेकिन हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजी पे और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, हमारा टारगेट हिंदुस्तान की पहली 2-3 कंपनियों में आने का ही है। इससे कम का हम
नहीं रहे हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम तैयारी कर रहे हैं। बैकवर्ड इंटीग्रेशन इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक एक कंपोनेंट इन हाउस बनना शुरू हो जाए और हमारा टेक्नोलॉजिकल जो पकड़ है, क्योंकि इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना बड़ा आसान नहीं है। हमारा अगले 1 साल में इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है इट इज मोर देन 300 करोड़। ओके। और आई थिंक हम कोई 35-40 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। कोई ओके, गॉट इट। जी थैंक यू। इसमें कोई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का कुछ है, मतलब टॉप 5 क्लाइंट से कितना रेवेन्यू हो रहा है अभी करंटली हमको? क्लाइंट वाइज रेवेन्यू सर अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट में काफी कंपटीशन होता है। अभी क्लाइंट डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है हमारे लिए बहुत ज्यादा, वो हमें नुकसान कर जाएगा और अगर आप मेरे इन्वेस्टर हैं तो आपको भी नुकसान कर जाएगा। श्योर सर। दूसरी चीज, आपने एनजी मोटर्स और एनी कंपनी टू गेट थ्रू टू डिस्कशन एंड देन क्लोजिंग, कितना समय लगता है? आपने काम का जिक्र किया है, कितना समय लगता है? मतलब 1 साल लग जाता है सर। इसके अंदर सबसे पहले ARI के सर्टिफिकेशन कराना होता है आपको। उसमें वो एक एक कंपोनेंट जो आप इसमें यूज कर रहे हैं कंपोनेंट को वेरीफाई करते हैं और उस कंपोनेंट मैन्युफैक्चर की भी फैक्ट्री विजिट करते हैं, उसको भी वेरीफाई करते हैं। ओके, राइट। और सबको करने के बाद फिर आपका प्रोडक्ट टाइप टेस्ट होता है और सारे स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, देन कम्युनिकेशन टेस्ट होते हैं। सबके अंदर स्टैंडर्ड टाइम जो है उनका वो 6 से 7 महीने का सबमिशन के बाद, तो 1 साल लग जाता है मिनिमम भी के साथ कंफर्म होने के बाद। जब आप कंफर्म हो जाते हैं उसके बाद वो 6 महीने लेते हैं किस बात के लिए कि जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो वो प्रोडक्ट है या नहीं है। ओके। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। टाटा के साथ हम हो चुके हैं और कुछ अच्छी न्यूज़ आपको जल्दी सुनने को मिलेगी। हो सकता है एक कस्टमर को सुनने को मिले, हम उस पर काम कर रहे हैं। श्योर। एंड आप अपने 4-5 बताए, तो इन 4 बिजनेस का ग्रोथ आउटलुक आप बता सकते हो ओवर द नेक्स्ट 4-5 बिजनेस? आपने बताया कि जैसे ईवी चार्जर हो गया, सोलर हो गया, तो इन सेगमेंट्स में क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है? ईच ऑफ द सेगमेंट में क्या ग्रोथ? अगर आप देखें हमारी प्रेजेंटेशन, हमने तो उसमें ग्रोथ ड्राइवर दिए हैं। आप एक उसको अगर गो थ्रू कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको आपकी बात का जवाब मिल जाएगा। हमने उसमें डाला है सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आप बता सकते हो या? तो मैं वही कह रहा हूँ, आप एक बार हमारी स्लाइड नंबर 17 और 16 अगर आप पढ़ लें तो हमने उसमें सोलर इंडस्ट्री और ईवी इंडस्ट्री के बारे में पूरी बात लिखी है। ओके, श्योर। ओके, आई थिंक या दैट। थैंक यू। Thank you. The next question is from the line of Bhavya from EM Capital. Please go ahead. Hi sir, am I audible? जी जी बताएं। Sir, so we were in the middle of sales with Tata Motors में EV chargers के लिए, तो आप इस स्टेटस के बारे में थोड़ा सा पूछ पाएंगे? मैं दोबारा सुनना चाहता हूँ आपका सवाल। सर हम लोग इस टाटा मोटर्स का बात मतलब we were in the middle of sales right with Tata Motors जी। इसमें EV चार्जर को लेके, कैन यू प्लीज शेयर द स्टेटस ऑन दैट कि हम कहाँ पहुँचे? सर एक्चुअल में क्या होता है कि जब तक कोई ऑर्डर आपके हाथ में कंफर्म्ड नहीं आ जाता मैं को ऑर्डर नहीं मानता। मेरा एक मानना है कि बिजनेसमैन को जीवन में 3 ही बार खुशी होती है। पहला जब उसको ऑर्डर मिलता है, दूसरा जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है, और तीसरा जब उसको पैसे मिल जाते हैं। तीसरी जो खुशी होती है वो पहले 2 खुशियों को बर्बाद कर सकती है कभी भी। यानी कि आपने ऑर्डर ले लिया और माल सप्लाई किया और आपको पैसे नहीं आए तो आपकी दोनों खुशियां खत्म हो जाती हैं। इसी तरीके से ऑर्डर के अंदर भी 2-3 हैं, आपका L1 होना, आपका एग्रीमेंट साइन होना और आपके हाथ में परचेज ऑर्डर की कॉपी आना। तो तीसरा स्टेप जब तक नहीं हो जाता तो खुशियां कभी बर्बाद हो सकती हैं। तो इससे मैं कुछ भी पब्लिकली बोलूंगा, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। एक बार खुशी हमारे हाथ में आ जाए देन आई विल शेयर विद यू डेफिनेटली। सर और सर हम लोग सोलर पावर EV में 4 पोर्ट्स कर रहे थे राइट? जी बिल्कुल कर रहे हैं। हौज खास के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, आप न्यूज़ भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। हालांकि इसका एक हमने शायद 1 महीने पहले रिलीज किया था पब्लिकली,
दोबारा रिलीज होगा तो वो इनोग्रेट होगा। तो मतलब फाइनल प्रोडक्ट पे टेस्टिंग का क्या सीन है सर उसका भी? हम सब कुछ कर चुके हैं सर, हम तो इंस्टॉल कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी के लिए, बट वहाँ पर कुछ उनकी क्लियरेंस वगैरह के इशूज हैं, एमसीडी से, टीएमसी से, ये अपने इशूज हैं, इसकी वजह से वो प्रोजेक्ट थोड़ा धीरे चलता है। जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो सब क्लियरेंस करा के देना उनका काम है। तो जैसे ही हो जाएगा हम उसको ऑपरेशनल करेंगे, तो इनोग्रेशन करवाएंगे, वी विल डेफिनेटली शेयर विद एवरीवन, क्योंकि प्रोडक्ट हमारी तरफ से पूरी तरह टेस्टेड है, हमारी फैक्ट्री में चल रहा है, किसी भी दिन कोई भी आगे देख सकता है। ओके ओके, थैंक यू सर। जी, Thank you. Before we take the next question, I would like to remind all participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. Next question is from the line of Jitesh Parmar, an individual investor. Please go ahead. Congratulations sir for a great set of numbers. सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी आप बताया कि वी आर प्लान टू हैव अराउंड crore कैपेक्स, तो आप इसे फाइनेंस करने के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे फाइनेंस होगा, एंड आर यू टू बेसिकली डाइल्यूट द शेयर्स इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, डू यू हैव एनी सच प्लान? सर इसमें ना 3-4 फेजेज में है इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं और हमने कुछ डेट लिया है बैंक से, और क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से हमें मार्केट सपोर्ट करती है और सब कुछ है, तो अभी डिलीशन का इस स्टेज पे कोई मूड नहीं है। हो सकता है हम सितंबर ऑनवर्ड्स कुछ छोटा मोटा डिलीशन करें और समवन, बट कोई मेजर अभी डिलीशन का कोई प्लान नहीं है। ओके सर, तो ये जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ज्यादातर मतलब इंटरनल अप्रूवल से और इंटरनल अप्रूवल्स और टैक्स से कर रहे हैं, बिल्कुल। सर ये डेट से रहेगा, मतलब वो प्लान टू सी हाउ डेट एंड इक्विटी वुड लुक लाइक? नहीं समझा, डेट कैसे रहेगा मतलब दोबारा बोलेंगे प्लीज? मतलब कितना हम डेट लाना चाहेंगे, डेट इक्विटी रेशियो कैसे हो सकता है? सर हम लोग जो टारगेट कर रहे हैं वो हमारी कोशिश यही है वो किसी भी हालत में 50-60% से ऊपर ना जाए ऑफ द इक्विटी रिजर्व का जो टोटल है, मान लीजिए 100 करोड़ है तो 50 करोड़ ना जाए, ऐसी हमारी कोशिश है। ओके सर। सर ये हमारे अभी अगर इफ आई सी प्रेजेंटेशन तो हमारे 5 मेजर प्रोडक्ट कैटेगरीज है एंड ईवी इज वन ऑफ देम। वी सी दैट दैट वुड ग्रो सब्सटेंशियली, तो ये मार्जिन में क्या इम्पैक्ट आएगा? और सर जो दूसरे वर्टिकल्स है लाइक एलईडी, स्टेबलाइजर, पावर पिकअप, उसमें क्या इफेक्ट आएगा? आई मीन आर वी स्टिल कंटिन्यू ऑन दैट बिजनेस और हाउ इज इट गोइंग टू चेंज? मैं इसमें 2 ही बात कहूँगा आपको। पहला ये कि मार्जिन का जो इम्पैक्ट की आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप 3 साल का डेटा देख लें, आपको आप समझ आ जाएगा कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं या क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, एबिटा इम्प्रूव हो रहा है, प्रॉफिट इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब जो आपका सवाल है तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है अपने आप ही कि क्या हो रहा है, दैट इज नंबर 1। दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि एलईडी के क्या हिस्सेदारी है या और चीज़ों की क्या हिस्सेदारी है, उसको भी आप ध्यान से अगर समझेंगे तो हम लोग उनमें भी नेक्स्ट प्रोडक्ट में डील करते हैं। अगर हमें एलईडी के प्रोडक्ट करने होते तो हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी मार्केट में सेल्स में नहीं आए जहाँ पर आप कमोडिटी आइटम्स के अंदर डील करते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, इस तरीके के काम कभी नहीं किए। हम पहले भी जो काम करते थे वो फ्लेम प्रूफ लाइट्स बना रहे हैं, पेट्रोलियम के लिए लाइट बना रहे हैं। हमारी जो आप कह सकते हैं जो स्पॉट बिजनेस अगर आप हमारा देखा तो हमारी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हम निश मार्केट में ही ऑपरेट करते हैं हमेशा से। तो इस टाइम एलईडी के पैनल्स मार्केट में 1500 रुपये बेचते थे, हम 4000 का बेचते थे, और वो ये बेचते थे क्योंकि हम पैसो सर्टिफाइड थे और हम पेट्रोलियम इंडस्ट्री को बेचते थे, राइट। और जब हम लाइट बेचते थे तो हम फ्लेम प्रूफ लाइट बेचते थे। आज किसी तरीके के प्रोडक्ट से काम करते हैं हम। तो एलईडी में भी हम वही प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे एलईडी की बात करें, सोलर एलईडी सिस्टम हम इंस्टॉल कर रहे हैं आजकल, तो वो उसमें मार्जिन है, तो हमें मार्जिन वाले काम करने हैं और ऐसी चीजें करनी है जो आम कंपनी करने से घबराती हैं, ताकि हम कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं कम्युनिटी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। ओके
और सर ये जो हमारा ईवी का बिजनेस है में टेक्निकल रेजिस्टेंस कितना है, अगर न्यू प्लेयर को, अगर कोई बड़ा न्यू प्लेयर एंटर करना चाहे, ओके, स्पेशली यू नो द कमर्शियल प्लेयर्स लाइक टाटा और एनीवन, तो कितना डिफिकल्ट है मार्केट क्रैक करना, और हाउ मच लीड टाइम दे हैव, ओके, लाइक यू नो बिफोर दे कैन यू नो एसेंशियली इम्पैक्ट दिस मार्केट? तो ऐसा है, आपको बात अब ध्यान से समझें, सारी चीजें सिर्फ पैसे से या आपकी जो है फाइनेंशियल मसल से नहीं होती है, राइट? अगर ऐसा होता तो आप ध्यान से सोचने की कोशिश करें कि क्या मारुति छोटी कंपनी है, क्या टाटा छोटी कंपनी है, क्या मर्सिडीज छोटी कंपनी है, क्या BMW छोटी कंपनी है? नहीं है ना। लेकिन इसके बावजूद आज तक किसी भी कंपनी ने टायर्स अपने नहीं बनाए। ध्यान से आप देखिए। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आज भी जो गाड़ियां बेच रही है, एनजी जो गाड़ियां बेच रही है, चार्जर्स उनके नहीं आते हैं, चार्जर थर्ड पार्टी है। टाटा पावर टाटा मोटर्स के लिए चार्जर इंस्टॉल करती है, वो पर्टिकुलर उन्होंने अपने पास नहीं रखा। और हमने भी जब ये सब एनालिसिस कर लिया तब हमने इस मार्केट में एंट्री ली है, क्योंकि घुसना बड़ा आसान होता है, अपने आप को वहां पर सस्टेन करना और ग्रो करना बहुत मुश्किल होता है। हम लिथियम बैटरी के उस सेगमेंट में बिल्कुल नहीं गए जिस सेगमेंट के अंदर हमें मालूम है कि टाटा भी अपनी फैक्ट्री लेके आ रहा है और रिलायंस भी अपनी फैक्ट्री लेके आ रहा है और अडानी भी लेके आ रहा है। हमने वो सेगमेंट चुना है जिस सेगमेंट में वो कभी नहीं आएंगे, यानी कि सोलर के प्रोडक्ट्स या ईवी के लिए जो हम बैटरी बैंक बनाएंगे उसके लिए, उसमें उनका कोई इरादा नहीं है। वो बना रहे हैं व्हीकल्स की बैटरियाँ, हाई एंड बैटरीज, जिसमें उनका और हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। तो हम आपको ये ढूंढना है कि आप कौन सी जगह पर रह के काम कर सकते हैं जहां पर आपका कंपटीशन मिनिमम हो जाए, यानी कि आपके प्रोडक्ट के कस्टमर का ऑब्जेक्शन ना हो और कस्टमर के पास कोई ऑप्शन ना हो। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप जीत जाएंगे, और हम वही करने की कोशिश करें। ओके सर। वेट सर, वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। हम जो एक प्लान कर रहे हैं और हमारे जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो कैसे रैंप होगा, और कब हम लोग यू नो रेडी हो जाएंगे? नंबर दैट वी आर सेटिंग, ओके, दैट वी वांट टू डू 6 लाख, ओके, जस्ट 6 लाख चार्जर मैं नहीं समझा। टेस्ट चार्जर की बात तो हमने कहीं नहीं की है सर, मेरे ख्याल से। सॉरी, यू मेंशन्ड यू वांट टू एक्सपांड, आई थिंक मे बी आई पिक्ड अप समथिंग। मैं आपको सिर्फ एक बात बता देता हूँ कि हम जहाँ खड़े हैं, आज हम जहाँ खड़े हैं, लास्ट ईयर के टर्नओवर से 2.5x करने के लिए हम अभी से कैपेबल हैं आज। और हम अभी जो नई फैक्ट्री जो नए प्लान कर रहे हैं वो हम 2024-25 और 2025-26 के लिए प्लान कर रहे हैं। Thank you, sir. I'll get back to I'll get into the queue. Thank you. Thank you. Thank you. For the next question, reminder the participants, if you have a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. The next question is from the line of Ashok Agarwal, an individual investor. Please go ahead. Thanks for giving chance again. रमन जी, हम ये मेंशन कर रहे हैं कि हम we are the fourth largest supplier of recharge in India, we are the fourth. तो हम हमारा कंपटीशन मेन जो हमसे हैं, name few of them for our knowledge. सर मुझे ना सर्वो की ये गद्दी अलाउ नहीं करती कि मैं अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करूं या उनके नाम दूं आपको, लॉजिकली ठीक बनता नहीं है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पर। मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि मैं टॉप जो भी 2-3 कंपनी होंगी, नहीं पता वो कौन होगी, लेकिन उसमें से एक हम जरूर होंगे, इसकी गारंटी आपको दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you. A reminder to the participants, if you wish to ask a question, please press star then 1 on your touchtone telephone. We have the next question again from the line of Mr. Ashok Agarwal, individual investor. Please go ahead. रमन जी, मैं पूछना चाह रहा था कि हम मतलब मार्जिन कैसे इम्प्रूव करेंगे पीरियड ऑफ लास्ट
मुकाबले में मार्जिन इस साल हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मार्जिन कैसे ग्रो करेंगे, थोड़ा मार्जिन करना चाहिए। सर मेरे को ऐसा लगता है फिर अपने ना फाइनेंशियल्स को ध्यान से नहीं पढ़ा है। अगर आप फाइनेंशियल्स को देखें तो आप ये देखें सर, जो लास्ट ईयर लेडीज हैं राइट, उन प्रॉफिटेबिलिटीज में 11 करोड़ से ज्यादा का प्रोविजन किया गया है बैड डेब्ट का। अच्छा, अगर उसको प्रोविजन को हटा दें 1 मिनट के लिए तो आप देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी 250 करोड़ रुपए के ऊपर 25 करोड़ आ गई। अच्छा, तब कितना उस पर ध्यान नहीं गया हमारा, मतलब तो मेरा फर्ज है, मैं इस कॉल पे हूँ इसलिए ना, जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसमें बताऊँ क्या। इसका मतलब हम लोगों ने क्या किया है कि हमने पिछले 2, 4, 5 सालों में या 7 सालों में जो अकोमुलेट किया था और जो नजर आ रहा था कि इसमें अभी इश्यूज हैं, हम उसको बुक्स में आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। इसके अलावा एक और चीज है सर, हमने वारंटी की प्रोविजनिंग करनी शुरू कर दिया। आप देखेंगे तो 3 से 4 करोड़ रुपए की वारंटी की प्रोविजनिंग है, यानी कि अगले 3 सालों में जो भी हमने पिछले साल में गुड्स बेचे हैं उनकी वारंटी की जो कॉस्ट है वो भी प्रोविजनिंग से एडजस्ट होगी। तो यानी कि उसका भी साइड इफेक्ट कंपनी के प्रॉफिट से नहीं आने वाला। अच्छा, तो लास्ट ईयर के अंदर अगर हमने इक्विटी 14 करोड़ से ऊपर दिखाया है तो 14 करोड़ के आसपास की प्रोविजनिंग है। दैट मीन्स 250 करोड़ रुपए के धंधे में 28 करोड़ का पीबीटी बन जाना चाहिए टेक्निकली। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है सर ये इस शाबाशी के हकदार तो हमारी कंपनी और हमारी टीम है कि हम इसको 3 सालों में करने नहीं किया हमने। और एक और चीज आपको बता दूं, और वो ये बता दूं कि हमारी कंपनी में क्रेडिटर्स साइड लगभग 0 है। हम क्रेडिटर्स से उधार माल नहीं खरीदते, हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अच्छा, और इसका रिस्पॉन्स कैसा है? क्रेडिटर्स हमारे किसी जमाने में 212 दिन के हुआ करते थे, अभी वो घटते हुए करीब करीब 60-70 आ गए हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो जिस तरीके से देखते हैं इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो डेज फ्रॉम द मतलब डेज की कैलकुलेशन करते हैं टोटल टर्नओवर पे। हमने आपको बताया, शायद आपने सुना होगा कि हमारी लास्ट क्वार्टर की टर्नओवर वो 115 करोड़ थी या 119 करोड़ थी इन टोटल, अगर आप ध्यान से देखें राइट। और हमारे डेटर करोड़ के या 78 करोड़ के ऐसे कुछ था है ना, 82 जैसे में, तो करीब 80-82 करोड़ के हमारे डेटर थे। तो अगर आप देखें उस तरीके से तो 60 दिन के भी नहीं होते। लेकिन अगर आप 250 करोड़ की टर्नओवर से उसको डिवाइड बाय 365 डेज करके निकालेंगे तो वो डेटर्स आपको 17 दिन के दिखेंगे। रीजनेबल है 40-50 डेज, यू नो अब 3 मंथ्स भी आए तो भी रीजनेबल है। मतलब आपको कई क्लाइंट गवर्नमेंट सेक्टर भी होंगे, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के ही हैं, कुछ चैनल में तो हम उधार नहीं करते। अच्छा, Mr. Agarwal, does that answer your question? yes sir. Thank you. This is a reminder to all participants in this conference. If you have a question, please press star then 1 on your touch telephone. Ladies and gentlemen, that was the last question for today. On behalf of Servotech Power System Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining. Please disconnect your lines now.